Hello students, welcome to all in this class of social science. Dear students, today in this module we are going to introduce a new chapter of political science. In this tour of democracy, we have come across political parties many times. In class 9th, we have discussed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional designs, in electoral politics, and in the making and working of government. In this book, we have glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power and as negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. Before ending our tour, let's take a close look at the nature and working of political parties, especially in our country. So today we are going to discuss about political parties. In this chapter, we will start from two common questions. Why do we need parties and how many parties are good for a democracy? In the light of these, we will also introduce the national and regional political parties. We will also discuss what is wrong with political parties and what can be done without it. So let's start our chapter, the political parties. Let's start with the question, why do we need political parties? Dear students, political parties are one of the most important and visible institution in a democracy. For ordinary citizen, democracy means political parties. If you travel about your area and talk to less educated people, you could come across who may not know anything about democracy or constitution. But chances are that they would have a good knowledge of our political parties. At the same time, such responses does not mean the popularity of political parties. Most of the people can be seen to criticize the political parties whatever is happening wrong with our democracy and our political life. Generally, the people blame the political party for all that happens. So beta, we are talking about why do we need democracy. Think about it. Students, अगर हम ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारा रिप्रेजेंटेशन करती हैं, हम किसी एक पार्टी को चूज़ करते हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी एटसेट्रा, एनीवन. यू नो बेटा, इन पार्टीज़ के बीच में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं. क्या डिफरेंसेस होते हैं? इनकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स डिफरेंट होते हैं. क्यों हम इन पार्टीज़ को चूज़ करते हैं? बेसिकली हम क्या देखते हैं बेटा अपने रूटीन लाइफ में? डेमोक्रेसी रिवॉल्व्स अराउंड द पॉलिटिकल पार्टीज. बट एक्चुअली क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसलिए डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी है इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं. सो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर दिस इज पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. मीन्स अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेसी में तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. इतनी सारी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनका नाम सबने सुना हुआ होता है. क्यों? क्योंकि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ पर अवेयरनेस या लिटरेसी कंपैरेटिवली इज़ वेरी लेस, लोगों को डेमोक्रेसी का पता हो ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो या ना हो, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता होता है. उनके लिए democracy is actually defined by political parties. We might not be aware of what is the level of the government, but they would always be aware of who is their representative. कौन है उनका रिप्रेजेंटेटिव या कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, किसे वो वोट देना चाहते हैं. किसी गांव में जाकर के पूछ लो, किसी छोटे कस्बे यानी टाउन में जाकर के पूछ लो. People would always be aware of which parties in power, and that defines democracy for them. However, this is the limitation. ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी कंट्री में, because political parties exist because of democracy.
democracy does not exist because of political parties. लेकिन somehow ऐसा है हमारे context में. So this makes it so clear to understand कि political parties का कितना बड़ा रोल है हमारी country में, हमारे constitution में. But mostly people political parties को generally criticize भी करते हैं. अगर कुछ भी डेमोक्रेसी में या पॉलिटिकल लाइफ में कुछ भी रॉन्ग होता है तो उसका सारा ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज पर ही थोपा जाता है. जैसे कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा हो गया, बीजेपी ने ये कर दिया, यानी गलत काम का दोषी पार्टीज को ही माना जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल? इफ वी टॉक अबाउट 100 years बैक, देन देयर वर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड that had political party, but nowadays there are few countries that do not have political parties. So why did political parties so omnipresent in democracies all over the world? Let's first answer what are the political parties and what do they do. Dear students, let's know what is a political party. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. So dear students, जैसे हमने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, उनमें गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज. पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि पावर शेयर होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच. सो इट मेक्स अस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. What are political parties? My dear students, suppose जब भी आप कोई टीम बनाते हो, पार्टी बनाते हो या कोई ग्रुप बनाते हो, तो one thing is common in all these कि लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के एस्पायरेशंस, आइडियोलॉजीज, आइडियाज़, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं. इनके बिना कोई भी ग्रुप, कोई भी टीम, कोई भी पार्टी इंटरेक्ट नहीं कर सकती. तो बच्चे, पॉलिटिकल पार्टीज में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है. बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ग्रुप होता है जिसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से फॉर्म किया जाता है, जहाँ पर सेम आइडियोलॉजी वाले लोग इकट्ठे होते हैं और ये आइडियोलॉजी पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड होती है. इनका पर्पस क्या होता है? द पर्पस इज कंटेस्ट टू बी एन इलेक्शन, मीन्स इलेक्शंस में खड़े होना और अपनी पावर के लिए लड़ना और पावर लेकर के इलेक्शन जीतकर गवर्नमेंट फॉर्म करना. राइट? दिस इज व्हाट अ पॉलिटिकल पार्टी इज एंड दिस इज व्हाट अ पॉलिटिकल पार्टी डज. डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द नेशन एज वेल एज द सोसाइटी टू प्रमोट कोलेक्टिव गुड. सो व्हाट कैन बी गुड फॉर ऑल और नॉट? Different parties have their different views about this. Dear students, all the political parties try to persuade people why their policies are better than others. They wanted to implement their policies and programs by winning the popular support through elections. Dear students, political parties, they will form some policies and programs, means elections में contest करने के लिए political parties अपना manifesto बनाती हैं, which will have basically the collective good. यानी जो वो सारे लोगों की भलाई के लिए करना चाहेंगी वो पहले प्रोमिसेस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को सोसाइटी में फॉरवर्ड करेंगी. उसके बाद वो लोगों को उन पॉलिसीज के बेस पर परसुएट करने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम हमें ही वोट दो क्योंकि ये हमारी पॉलिसीज हैं, हम इन पॉलिसीज पर काम करेंगे एक बार जब हम पावर में आ जाएंगे. एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम बेटर देन अदर्स, दैट बेस्ड ऑन दैट पीपल एक्चुअली सपोर्ट देम. Then they form the government and they work on implementing those policies, and after winning the popular support through elections, and then they will try to make those policies and laws depending upon the programs that they had promote before the elections. Okay, so this is how the political parties are formed and this is how the government formed. Dear students, in this way we can say that parties reflects of fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of society and thus involve partisanship. So what is partisanship? It is marked by a tendency
to take a side and inability to take a balanced view on an issue. Or partisanship means feeling of commitment towards party or faction. स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज क्रिकेट टीम की बात करें, से टीम इंडिया, वी हैव फीलिंग ऑफ पार्टिसनशिप फॉर टीम इंडिया। मीन्स हम उसके प्रति कमिटेड हैं बहुत ज़्यादा। हम इतने स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं कि एक बैलेंस्ड व्यू और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने में फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ टीम इंग्लैंड है, दूसरी तरफ टीम इंडिया। इंग्लैंड की टीम चाहे अच्छा परफॉर्म भी कर रही है तो भी हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली, पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग जुड़े होते हैं उनके अंदर भी फीलिंग ऑफ पार्टिसनशिप देखने को मिलती है। उसके थ्रू क्या होता है कि उनका कमिटमेंट, उनकी फीलिंग्स ये रहती है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से स्ट्रांगली कमिटेड हैं, इसीलिए वो अपना बैलेंस्ड व्यू नहीं रख पाते। वो सिर्फ अपनी पार्टी को हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे रॉन्ग हो या राइट। दिस इज अ फीलिंग ऑफ पार्टिसनशिप। सो डियर स्टूडेंट्स, a political party has three components: the leaders, the active members and the followers. leaders यानी जिनके पास पावर होती है। सपोज अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन एटसेट्रा, ये लीडर्स की कैटेगरीज में आते हैं। मीन्स जिनके पास पावर होती है। आई मीन टू से एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम प्रोमिनेंट लीडर्स who formulate policies and programs of the party, and active members जिनके पास पावर नहीं होती बट वो पार्टी का बेस होते हैं, एक्टिवली पार्टी के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वगैरह, इनको एक्टिव मेंबर्स कहते हैं। और यू कैन से दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट कमिटीज ऑफ द पार्टी एंड पार्टिसिपेट डायरेक्टली। एंड थर्ड वन इज फॉलोअर्स यानी वोटर्स, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो एक्टिव मेंबर की तरह किसी पार्टी के प्रोग्राम्स को मैनेज नहीं करते बट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बेसिकली, पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स. Political parties performs a series of functions. So let's discuss. First one is parties contest elections. Dear students, in most democracies, elections are held and these are contested by different candidates put by different political parties. Parties select their candidates in different ways. In countries like USA, members and supporters of a party choose its candidates. Now, this is followed by more and more countries. But if we talk about our country, India, then can you tell me who select the candidates for elections? Generally, in our country, top party leaders choose candidates for contesting elections without keeping in mind their ability and efficiency. In our country, even candidates having criminal background are supported and selected by the parties for contesting elections. So beta, first of all, contest elections means elections में खड़े होना। ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से होता है। अपनी कंट्री इंडिया में टॉप क्लास लीडर्स ऑफ द पार्टी वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। जैसे अगर बीजेपी से सपोज हरियाणा से कौन फाइट करेगा, ये बीजेपी के लीडर्स चूज करेंगे। बट यूएस जैसे कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ जो लोग होते हैं पार्टी मेंबर्स एंड अलॉन्ग विद दैट द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे विल डिसाइड कि कौन सी पार्टी से कौन सा पर्सन उन्हें रिप्रेजेंट करेगा. So the choice is given to them. After choices, contenders of the particular constituencies, they will contest elections. Let's discuss about the next function of the political parties. Political parties put forward different policies and programs. Elections contest करने के बाद of course political parties अपनी policies को जनता के सामने forward करते हैं. Their policies, programs जो भी implement करना चाहते हैं.
The voters have to choose from them. Each of us have different opinions and views on what policies are suitable for the country and the society. But no government or political parties can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions are grouped together to provide a direction in which the policies are formulated or implemented by the government. The students, thus, political parties reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. I mean to say, parties different views को कुछ basic points में इकट्ठा कर लेती है जिनका वो support करती है. Dear students, the another function of the political party is that parties play a major role in making laws for the country. After that implement their policies, their programs, they make laws for country, right? Formally, the laws are discussed and debated and passed in the legislature. But since most of the members belong to a party, they just go by the direction of the party leadership, irrespective of personal opinion. In simple words, we can say that the members are not allowed to speak or give opinion about the laws decided by the government. For example, we can talk about the 3 agriculture ordinances, that is 3 Krishi Adhyadesh of the present government. Dear students, let's discuss about the next function of political party. Political parties form and run the government. As we have discussed last year in 9th class, the big policy decisions are taken by political executive, that is comes from the political parties. So we can say that political parties recruit the leaders, train them and then make them ministers to run the government in the way they want. मीन्स जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और वो जो पार्टी जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है. मीन्स पार्टी के मेंबर्स ही गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एट्सेट्रा. सो फिर वो कंट्री के लिए काम करते हैं. आई मीन टू से पार्टी से जुड़कर कंट्री के लिए काम करते हैं. इट मीन्स पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती है. सो दिस इज ऑल्सो द मेन फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. The students, political parties also play the role of opposition. Those parties that does not get majority in the elections play the role of opposition in parliament. The main function of opposition is to voice different views and to criticize government for its failure or wrong policies. Opposition is very important in the government. It also mobilizes the public opinion. Means parties plays the role of opposition. This is very important point. You know very well, सभी पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, बट सभी पार्टीज तो जीत नहीं सकती ना. जो पार्टी हार जाती है और सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी होती है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है. ऑपोजिशन पार्टी का मेन फंक्शन क्या होता है? दे कीप्स अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टी हैं, पार्टी एक्स एंड पार्टी वाई. सपोर्ट पार्टी एक्स रूलिंग पार्टी है और पार्टी वाई अपोजिशन. अब जो पार्टी अपोजिशन में है वो रूलिंग पार्टी पर पैनी नज़र रखती है. फॉर एग्जांपल रूलिंग पार्टी ने कोई रॉन्ग डिसीजन तो नहीं लिया, राइट? सो वो उसको अपोज करेंगी. कहीं कोई करप्शन कर रहा है तो उस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे. अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकती है, डिबेट कर सकती है, डिस्कशन कर सकती है उन सभी डिसीजंस पर जो रूलिंग पार्टी ले रही है. अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रूलिंग पार्टी फ्रीली काम करती है, लेकिन जब अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग हो तो रूलिंग पार्टी हमेशा डर के ही काम करेगी. डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो. दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज रिलेटेड टू कॉमन गुड. Different parties have lakhs of active members spreading all over the country. Many of the pressure groups and movements are the extensions of political parties. Parties launch movements and agitation to resolve the problems faced by the people. Often opinion in the society crystallize on lines parties take. So dear students, जो political parties होती हैं, जो उनके followers होते हैं, active members होते हैं,
पूरी कंट्री में स्प्रेड आउट होते हैं। इन्हीं लोगों के थ्रू पार्टी को व्यूज़ मिलते रहते हैं, फीडबैक मिलता रहता है कि व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट आर देयर डिमांड्स। जब ये सब लीडर्स तक पहुंचते हैं तो इसी बेसिस पर लोगों के इश्यूज वो रेज होते हैं, हाईलाइट होते हैं, और इसी बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो विच मेक्स द गवर्नमेंट ऑल्सो अकाउंटेबल और आंसरेबल। अगर गवर्नमेंट कोई काम प्रॉपर वे से नहीं करती तो जनता पॉलिटिकल पार्टीज को फिर वोट देने से मना कर देती है। सो द पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो आंसरेबल टू द पीपल एंड द सेम टाइम दे शेप द पब्लिक ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीजेपी है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, यानी हर पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, और उसी के बेसिस पर अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम ये डिसाइड करते हैं और अपना मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं। जो भी लोगों को, यानी जिस किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या पार्टी से रिलेट करता है, वो लोग उन आइडियाज़ के साथ उस पार्टी के साथ क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और उनके ओपिनियन पर शेप होने लगेगा लोगों का ओपिनियन। जो भी उनकी पार्टी सोचेगी वैसा ही सोचेंगे लोग। सो वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन। Dear students, political parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government. For an ordinary citizens, it is difficult to reach a government officer. People feel comfortable to approach the local leader of a party. That's why common people feel very close to the political parties even they do not fully trust them. Parties have to be responsive to the needs and demands of the people. If the parties do not like this, then the people can reject them in the next elections. यानी किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर तक रीच आउट करना या पहुंचना डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रीच दैट ऑफिशियल्स, बट इट इज़ ईजियर टू रीच आउट टू अ लीडर, क्योंकि वो लोकली आपके लिए अवेलेबल हैं। लोकल लीडर से आप अपनी ग्रीवेंसेस यानी अपनी कंप्लेंट्स शेयर कर सकते हैं, एंड ऑल द पीपल कैन डू दैट एंड दे एक्सीलरेट दीज इश्यूज़। ये हाईलाइट कर सकते हैं इन इश्यूज़ को, एंड द पीपल हु आर इन पावर कैन एक्ट ऑन इट। बट अब इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर को ये काम करना भी पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में उन्हें भी पता होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जनता अगर वो काम नहीं करेगी तो उन्हें रिजेक्ट कर देगी। डियर स्टूडेंट्स, we have discussed so many functions of political parties. Now, why the political parties are so necessary? आप इमेजिन करो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो सिनेरियो कैसा होता। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते, राइट। कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मेजर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस नहीं करता। वो छोटे छोटे चेंजेस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपनी सीट के हिसाब से प्रपोज कर देता। जब इलेक्शंस हो जाते और वो जीत जाता तो वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। पूरी कंट्री के लिए आप उसे अकाउंटेबल या आंसरेबल कैसे करोगे? सो देयर वुड बी नो वन जिससे हम पूछ सकते या कह सकते कि दिस वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल हाउ टू रन द कंट्री। सो दिस मेक्स द नेसेसरी फॉर दीज पार्टीज। I hope that you have got acquainted with the need of political parties. In simple words, we can say that in order to perform all the discussed functions, we need political parties. As a conclusion, we can say that parties are a necessary condition for a democracy. So, dear students, today in this module, we have discussed about the meaning of political party, their components, and functions and necessities of political parties. Thank you. Stay blessed. Stay happy.